Good evening guys, welcome back to the channel. My name is Sayan and I love traveling and I love motorcycle, and this is where we are right now. We have just finished a 5,000 kilometer trip all across Northeast. We started all the way from Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Arunachal, and right now we're in Assam. And today's video is about touring setup, especially when it comes to luggage for an Xpulse and the Himalayan. Luckily we are two bikers and मेरे Himalayan भी है. This Xpulse is mine, but I thought why not give you guys a perspective on how we carry and what all we carry in the luggage bags. And we're also gonna do a small review on two of the most premium saddle bags, which is Rhinox Expedition saddle bag and Rhinox Nomad version 2.1 saddle bag made for upswept exhaust system. So ये दोनों का हम review भी करेंगे, and I'm gonna take one after one of the luggage unit जो भी मेरे बाइक पे हैं and show you guys how we've been riding from last 5,000 kilometers. And also because these entire setup of both the Himalayan and Xpulse has seen the worst terrain a bike can see. I mean, Ladakh and Spiti is bare easy. When you come to the roads of Nagaland, when you come to the roads of Arunachal, things get crazy. And the setup that we have sustained us till now. थोड़े बहुत ग्लिचेस, थोड़े बहुत इश्यूज आए हैं, वो हर सैडल बैग, हर टूरिंग सेटअप में आता है. बट वी हैव फिनिश द ट्रिप, दिस इज द लास्ट डे एंड अभी तक सब कुछ टच वुड हैज़ गॉन गुड. वुड नहीं है तो मैं टच नहीं कर पाऊँगा. सो विल गो वन आफ्टर वन. सो पहला व्हाट वी गोना डू इज़ द टैंक बैग दैट आई यूज़. नाउ अ टैंक बैग यूज़ करना ना यूज़ करना पूरा आपके ऊपर है. It's completely up to you. For example, I am using the tank bag on the Xpulse. The Himalayan is not using the tank bag because साकेत भाई जो अभी behind the camera है, उनको tank bag की ज़रूरत नहीं पड़ती. He carries most of it in this thing on his shoulder bag. I use the tank bag for two particular things जो मैं आपको दिखा. Few of the important things that I keep in my टट्टी के काम पे: tissues, my goggles, my purse, extra pair of gloves, and I carry my main camera and my main mic, which is a Rode Video Mic Pro Plus and the Canon M50 with the kit lens 15-45. वो दोनों को मैं इसके अंदर कैरी करता हूँ एक प्रोटेक्टिव शीट के अंदर, बिकॉज जर्कनेस बहुत होती है. दो योर टैंक बैग इज़ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस फॉर योर कैमरा बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है. एंड जैसे बाइक हिलती है टैंक भी वैसे ही हिलता है, तो कम से कम जर्क टैंक बैग में आता है. Now I'll do some small जुगाड़ मैं आपको दिखाऊंगा. This bag, which is the Dirt Sack Boomerang dry gear bag, this is completely waterproof as the company says, but still a dry bag is very important, especially आप नॉर्थ ईस्ट या फिर कोंकण साइड में राइड कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है. बारिश में you don't want कि 50-60 हज़ार कैमरा में एक बूंद भी पानी जाए. So dry bag is very important. Keep this dry bag, and just to keep it more safe, सस्ता टिकाऊ फोम पैड है. इस फोम पैड को मैं यूज़ करता हूँ स्पेशल टू कीप द कैमरा. तो थोड़ा बहुत जो वाइब्रेशंस होता है वो डिटैच हो जाता है. एंड दिस बैग इज़ वेरी सिंपल एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. ऑल आई हैव टू डू इज़ व्हेन इज़ डन, the second system we're gonna come is the tail bag. Now again, tail bag is an optional thing. ज़रूरी नहीं है कि आपको tail bag यूज़ करना है. tail bag कब यूज़ करना चाहिए I'll suggest, okay? For example, right now these two saddle bags that I have, they can equivalently carry almost up to 50 लीटर. अगर 50 लीटर का सामान आप उठाते हैं इसमें, which is good because center of gravity आपका बिल्कुल नीचे के साइड रहता है. बट अगर आपको कैमरा है, if you have a drone or things that you have to take out in a jiff, जल्दी जल्दी निकालना है, तो tank bag is very important. Right now I'm using, this is a very cheap 2500 rupees tail bag, and what are the most important things that I carry over here is my main camera. My main camera and the drone goes over here. So because बहुत ही important चीज़ें होती हैं. So my main camera 5D Mark IV with a prime lens and 24-105. So ये जाता है मेरे बैग में. So this is one of the things, and इसमें मैं अपना ड्रोन भी रखता हूँ. अभी ड्रोन किसी और बैग में है, ड्रोन क्रैश हो गया था, सो ड्रोन
safely packed है अंदर. And once this is done, then I have my selfie stick. इस बैग के अंदर भी if you see, I have used a foam padding. मैंने एक्स्ट्रा फोम लगा दिया है ताकि जर्कने से थोड़ा बच सके. So this bag, the Vyaterra tail bag, is not completely waterproof, but इसके साथ ही रेन गियर आपको मिलता है, which अभी तक तो 2-3 बार बारिश हुई है, अभी तक मेरा सामान कुछ ऐसा गीला नहीं हुआ है, but still I would suggest कि आप इसमें ड्राई बैग यूज़ करें. It will be very very useful for you, and this can act as a office bag for you. ये भी अंदर चले जाएंगे अभी. So you can take it to office also आराम से. इसका स्ट्रैप भी आता है, शोल्डर स्ट्रैप, so you can easily carry it like this and go to office. ये आप इसमें कर सकते हैं. And one more good thing about this bag is, good thing तो नहीं है, तो for example these are not hard boxes, right? इनको हम openly नहीं छोड़ सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक छोटा सा लॉक ले लीजिए and इस लॉक को आप बांध देंगे तो आपका जो मेन कंपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा लॉकेबल हो जाएगा. सो दैट्स वन रियली गुड थिंग. ठीक है, हमारा टेल बैग हो गया, हमारा टैंक बैग हो गया. हमारा टेल बैग, अगेन द टैंक बैग टेक्स मोस्ट ऑफ द कैमरा गियर्स, माई वॉलेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. द टेल बैग कैरीज अगेन माई कैमरा गियर्स एंड द बैटरीज एंड एवरीथिंग जो मुझे जल्दी से जल्दी में निकालना होता है. ठीक है, टेल बैग डन. So the next setup is again a kind of a tail bag, but this tail bag is mostly for the top rack on the Xpulse. So this is a Vyaterra pod. कहानी है. This is also a very quick mounting, completely waterproof. आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करें अपने लगेज सिस्टम में कि completely waterproof रहे, उससे ये रहता है कि you are completely free of repacking and polythene, plastic वगैरह ये सब चीज़ें. So वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती. So this comes out. बहुत धूल है, बहुत ट्रिप में आई है. सो दिस इज़ अ कंप्लीट वाटरप्रूफ पॉट बैग एंड इसका फ़ायदा ये है कि मैं अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे कैंप साइट में निकलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल माई क्लोथ्स, माई स्लीपिंग बैग, अ टी शर्ट, अ पैंट, अ जैकेट, दीज थिंग्स गोज इनसाइड दिस बैग. क्योंकि कहीं पे भी अगर बहुत तेज़ बारिश आती है या फिर कैंप साइट में इजीली अनपैक करना होता है, सो दिस थिंग इज़ रियली यूज़फुल. एंड पॉट की खासियत ये है कि पूरा वाटरप्रूफ है, बट इसमें एक चीज़ है कि आप इसको एटलीस्ट 2 फोल्ड दे दें. एंड वंस इज डन, इजी टू माउंट एंड इजी टू फिट. ये सीधा मेरे टेल रैक में आता है. ये रैक आपको अलग से लेना पड़ेगा एक्सपल्स के लिए, बिकॉज ये तो बना नहीं आता है. एंड दिस रिक्वायर्स माउंटिंग प्लेट. एंड अगर आपको टेल बैग नहीं लेना, द गुड थिंग अबाउट दिस बैग इज़ कि इसको आज पे टेल बैग भी यूज़ कर सकते हैं. ये पूरा का पूरा नीचे फिट हो जाएगा, सो यू कैन यूज़ इट ऑन द रियर सीट ऑल्सो. सो दैट्स अ वेरी यूजफुल थिंग अबाउट दिस बैग. इसका दूसरा वर्जन भी आता है, जिस पॉट 22 लीटर, एंड यू कैन मिक्स एंड मैच अ पॉट 22 एंड अ पॉट 12 लीटर टू मेक इट अ 22 + 12 विच इज़ 34 लीटर्स का आपका लगेज बैग हो जाएगा. The last setup and the most important setup on this bike is the saddlebags, and these saddlebags that I'm using are Zynox Nomad 2.1 and इसकी भी बड़ी अच्छी सी कहानी है. पहले I was using these bags. This is the most expensive saddlebag that you can buy right now in Indian market especially. These are Zynox Stormproof saddlebags and ये completely as the name says they are stormproof. But उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया था and थोड़ा उसका स्टिचिंग टूट गया था. तो Zynox sent me these new bags. They are the Nomad version 2.1. So this bag gets mounted in 3 ways. The first way is these velcros. So ये पूरा का पूरा बैग ऐसे आ सकता है. So ये 2 ही वेलक्रो हैं. बेस्ड ऑन योर सीट का जितना भी विथ है इसको आप फिट कर सकते हैं लाइक दिस. एंड इसके बीच में एक और वो होता है विच इज़ बेसिकली अ सेफ्टी दिस थिंग. एंड इस बाइक में चाहे कोई भी बाइक हो, आपका पिलिन भी या फिर आपकी मैडम या फिर आपकी हुस्न परी भी पीछे सीट पे बैठ सकती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है.
So on an Xpulse, now what you're seeing right now, this is a very interesting touring setup that I have done. Primitive Xpulse जो होता है उस पर आप सैडल बैग नहीं लगा सकते, बिकॉज उसका जो साइलेंसर होता है वो बहुत ही राइट साइड में बाहर निकला होता है, एंड यू कैन ओनली ऑफ फॉर एन आफ्टर मार्केट सैडल स्टेज लाइक जाना, बट उसमें भी आपका सैडल बैग एक साइड से बाहर निकला होता है. सो पूरा हमने रीडन किया है. सो द stock exhaust has been removed and we have fitted Acra cheap acrophobic exhaust. एंड अभी थोड़ी धूल मिट्टी है इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट अब इससे ये फ़ायदा हुआ है कि एग्जॉस्ट बाहर निकला नहीं हुआ है, एंड बोथ द साइडल स्टेज आर एट परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, विच इज़ अ प्रीटी ऑसम थिंग, बिकॉज नाउ आप इस बाइक में कोई भी सैडल बैग यूज़ कर सकते हैं. पहले व्हेन आई यूज्ड टू हैव द नॉर्मल एग्जॉस्ट, आई यूज्ड टू ओनली बी एबल टू यूज़ अ टेल बैग बिकॉज इससे का बड़ा था, बट अभी कोई भी सैडल बैग हम इसे यूज़ कर सकते हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, स्पेशली द डिज़ाइन आई हैव डन दिस फ्रॉम करोल बाग. कोई भी आपका बंदा बना सकता है, एंड यू कैन जस्ट अगेन, मैंने पूरे एग्जॉस्ट को नहीं काटा है, ओनली द मफलर हैज़ बीन चेंज, सो वारंटी में भी इतना फ़र्क नहीं आएगा, एंड आवाज़ भी ठीक ठाक ही है इसकी. जस्ट टू शो यू गाइज, now we're gonna talk about the Nomad saddle bags. काफ़ी rough and tough bag है. It has a lot of rigid bags है, and these are the very few bags here in Indian market जिनका rigid shape होता है. It's because इसका जो पूरा outer frame है वो एक polycarbonate material से बनता है. So अगर इसमें सामान आप डालें, कम डालें, ज़्यादा डालें, ना डालें, तब भी इसका shape maintain रहता है. That's one good thing. ज़्यादा कुछ है नहीं इस बैग में, एक सिंपल सा चेन है आगे की साइड, एंड इट हैज़ द रेन गियर. ये बैग वाटरप्रूफ नहीं है बाय द वे, सो यू नीड टू हैव रेन गियर्स लाइक दिस. तो पूरे आपके सामान को पूरे कर लेते हैं, एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप आगे रख सकते हैं. सेंटर कंपार्टमेंट है जो इसका काफ़ी मैसिव है. अभी मैं सामान वगैरह नहीं खोलूँगा, बट इट कैन कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ इनसाइड. एंड अभी जब आई एम गोना पुट वन मोर वीडियो विच आई टॉक अबाउट द कैंपिंग गियर्स दैट आई कैरी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैंपिंग गियर और कैमरा गियर ही होता है. वो सामान जब मैं निकालूंगा तब मैं सामान सब निकालूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो ओपन मैकेनिज्म है वो काफ़ी ईजी है. जस्ट कम्स आउट इन वन गो, एंड यू कैन ऑल्सो पुट अ लॉक ओवर हियर. अगर आप इसमें लॉक लगा देंगे तो आपका सामान भी काफ़ी सेफ साइड रहेगा. Now when you talk about waterproofness, I know कि ये बैग waterproof नहीं है, but what you can do is easy to do. You can carry some big dry bags. These are also sent by Rhinox to me, and Rhinox इसमें पूरा इंसान आ सकता है मुझे पता है. But one thing I want to talk about this bag is, इस बैग की एक खासियत ये है कि इसमें आप जब सामान निकालते हैं, डालते हैं ना, इसका शेप रिटेन रहता है. मैंने पहले ही बताया कि इसे शेप रिटेनर बैग वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, स्पेशली ऑन दीज काइंड ऑफ बैग्स. आप इसमें से कुछ सामान निकालेंगे, ये बैग चपटा हो जाएगा. इट्स गोना गेट कम्प्लीटली फ्लैट. ये वाला बैग ऑन द अदर साइड ये फ्लैट नहीं होगा. सो आप इसमें सामान डालेंगे, निकालेंगे, easier. But again, the one last thing I'll suggest, that if you are especially buying saddle bags which are not D-ring ones, ये D-ring नहीं है, वेल्को है. इसमें आप 6 से 7 किलो के ऊपर वेट मत डालिए, because there are chances of failure. So वो आप बचत करके रखिए. Thank me later. Yeah, so just few other important things on this Xpulse touring setup that I have recently done is that there are new risers that I have done over here. ये नए risers हैं. ये normal जो gap risers होते हैं ये वो नहीं है. They are adjustable risers, so I can adjust the entire कि कहाँ पे इसको माउंट करना है. Again, these are very cheap ones from Karol Bagh that I've got. I think 1200 या 1300 रुपये तक का आया है. So Xpulse में क्या होता था पहले, यू यूज टू बी वेरी लीन डाउन, एंड आपका जो स्टैंडिंग पोस्चर है ना वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता. बट आफ्टर द राइजर्स काफ़ी हद तक आई कैन स्टैंड अप एंड आई कैन राइड. सो दैट्स रियली गुड फीचर. हैंडल बार राइजर्स आर रियली मस्ट फॉर Xpulse. सेकेंड थिंग इज़ अ चार्जर, नॉट अ नॉर्मल चार्जर, बिकॉज पहले मैंने सिंपल चार्जर लगाया था जो कि लाइक दिस ग्रैंड पिच टॉप, इसमें एक चार्जर निकलता है. Now the reason I have used this charger
सो द स्पेशली नाउ आई यूज़ दिस चार्जर फॉर 2 रीज़न. द पहला रीज़न ये है कि इसमें 2 आपके USB पोर्ट्स भी आते हैं और इसमें कार सिगरेट लाइटर पोर्ट भी आता है. नाउ फॉर एग्जांपल पीपल हु आर यूजिंग DJI ड्रोन्स, ओके, स्पेशली द Mavic Air 2, द Mavic Pro, द Mavic Pro 2, आपके सामने एक अगर आप दूसरा वाला उनका वो प्रो वाला वर्जन कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो वर्जन लेते हैं, तो उसमें कार चार्जर आता है, राइट. तो स्पेशली टू चार्ज माई ड्रोन्स आई हैव टू यूज़ दिस प्लग ऑन. यूज से नहीं चार्ज होता है. एंड यू कैन ऑल्सो बाय कार इन्वर्टर्स जिससे आप अपना लैपटॉप भी इसका चार्ज कर सकते हैं. एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग लाइक 2 USB पोर्ट्स प्लस 1 लाइटर. सो अगर मुझे 4 आइटम चार्ज करनी, इफ आई हैव टू चार्ज माई पावर बैंक, आई हैव टू चार्ज माई कैमरा बैटरी, आई हैव टू चार्ज माई GoPro, चार्ज माई GPS device also, I can use all the 4 ports. So this is really useful and plus I get to know the voltage also. So आपके बाइक का वोल्टेज 14-13 के आसपास होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो ठंड में घटता है. So I know when the voltage of my battery is down, so I can easily read it and I can change it before the battery dies out. So this is again Chinese material from Karol Bagh. I got it for like 800 rupees, but this is far worth. थोड़ा बड़ा सा है, बल्कि सा है, but मुझे तो काफ़ी अच्छा सा लगता है ये. So yeah, I think that's all about the Xpulse, and I'll quickly go through the setup on the Himalayan. It's a very easy to do setup. ये setup आप अपने कभी भी आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं. Now it look like ये बहुत सारा सामान है, but ये बहुत सारा सामान नहीं है, बहुत काम की चीज़ें हैं. बाय द वे, जैसे हम ये वीडियो में बात कर रहे हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सनसेट हियर इन असम. एंड जिस जगह पे हम हैं, इस जगह का नाम बोगी बिल है. एंड बिल इन असमीज मीन्स स्वैम्प एरिया. एनीवेज, सो दिस setup on Himalayan is a very basic setup that any of you can do. is basically कि आप अपने सामान को अच्छे से कैसे बांध सकते हैं. So over here if you see we are using 2 saddle bags, and rest all this thing see is as simple as that. Is a mat, 2 tents and a Quechua ka bag. Now the good part of using such kind of luggage system is that it's not very complicated, it's not very expensive. एक Quechua का बैग आपके ट्रैकिंग में भी काम आ सकता है. You can easily carry this whenever you want and you can go to your hotel, right? This is one really important thing. And Himalayan की खास बात ये है कि इसका जो टॉप रैक है काफ़ी वेट कैरी कर लेता है. So you can again use the same tail bag जो मैंने आपको बताया था on the Himalayan also. Or if your budget is limited and if you think आपका जो rucksack है वो अभी काम आ जाएगा, तो then you just use a rucksack on the tail bag. It's really 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 helpful. Okay, काफ़ी जमघट जाम हो गया है. Now the last and the most important part we're going to talk about. The most expensive saddle bag here in Indian market is the Rhinox Expedition saddle bag. इनका tail bag भी आता है, but अभी हम सिर्फ saddle bag ही यूज़ कर रहे हैं and इसके बारे में हम आपको बताएंगे. Again, as I said, these are the most expensive saddle bags here in Indian market because of 2 reasons. पहला, they are completely waterproof. Yes, अगर आपका बैग ना फटे तो पूरा का पूरा सेटअप है. 32 लीटर्स तो 32 लीटर्स, ऑलमोस्ट 65 लीटर की कैपेसिटी आपको मिलती है इन दोनों बैग्स में, इस सिंगल सैडल बैग में. एंड ये पूरा वाटरप्रूफ है. बिकॉज द रीज़न दे आर वाटरप्रूफ इज ऑफ दिस सिस्टम, which is they act as dry bags. They are saddle bags but they are dry bags. रोल टॉप बैग्स. इसमें आप दुनिया भर का जितना सामान डाल सकते हैं एंड इसको आप रोल टॉप कर दीजिए, हवा इसमें से निकाल दीजिए आप, वाटरप्रूफ. इसको आप सबमर्ज कर दीजिए. एंड द रीज़न आई एम सेइंग दे आर वाटरप्रूफ, दे आर टेस्टेड. एक वाटर क्रॉसिंग थी इन मेघालय जिस पे मेरी एक्सपल्स गिर गई थी. दैट मोमेंट आई वॉज यूजिंग द एक्सपीडिशन सैडल बैग एंड मेरी बाइक ऑलमोस्ट 10 से 11 मिनट के लिए पानी में पूरा डूबा हुआ था, बट मेरे सैडल बैग में पानी का एक कतरा तक नहीं गया. सो बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ है. बट बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि पानी में डुबो के चेक करना है तो उसके लिए तो भाई मैं नहीं बता सकता. बेसिक सेटअप में आपको ये बाइक बिल्कुल भी, बेसिक सेटअप में आपको ये बैग बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है. एंड इस बैग का मैकेनिज़्म बहुत ही सिंपल है. दे अटैच विद बी रिंग. मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ. सो इफ यू सी ओवर हियर,
is attached with a D-ring. So D-ring मैंने आपको बताया था compared to the Nomad 2.1 जो अभी हम बात कर रहे थे, ये वाला जो बैग है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है बिकॉज वेलक्रो अंडर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर टूट सकता है, बट डी रिंग जो होता है वो नहीं टूटता बिकॉज वो सॉलिड ग्रिप वाला होता है अनटिल अंडर स्टिचिंग जो इसका है वो निकल जाए. सो इसको माउंट करने का बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि दोनों बैग आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं. यूज़ इट द वे यू वांट. इसके पीछे इज एंटायर वेलक्रो पैड विच कम्स ऑन टॉप ऑफ द सीट, तो इनको आप अटैच कर सकते हैं ऐसे. एंड देन द डी रिंग कम्स. जितना भी आपका बाइक का वेट है इसको आप लगा सकते हैं. बोथ द बैग्स यू कैन नॉट यूज़ देम विदाउट सैडल स्टे. सैडल स्टे बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों बैग्स के लिए. एंड इस बैग की एक और मुझे अच्छी चीज़ जो लगी है वो है द रियर प्लेट. अब इसमें तो छेद आ गए हैं. राइनॉक्स अगर आप ये देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है स्पेशली ऑन लॉन्ग राइड्स. ये छेद है इसमें, वो बैग में भी छेद आ गया है तो इतना वाटरप्रूफ तो नहीं था, बट एनीवेज छोटी मोटी चीज़ें हैं. इसके पीछे ये जो प्लेट है ये थोड़ा हार्ड मटेरियल का है, तो अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं, कुछ कैरी कर रहे हैं, पीछे का जो ये चीज़ है ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा. नॉर्मल सैडल बैग्स में होता नहीं है, बट राइनॉक्स this is the most premium product that Rhinox is selling, so I think they have done their research onto it. And इसके पीछे भी if you see over here you have luggage cargo strap. अगर आपके पास और सामान है तो आप और सामान भी इसमें डाल सकते हैं. And pretty solid. And if you are carrying a tripod or if you are carrying a tent, अगर आप tent carry कर रहे हैं तो if you are carrying big bikes then you can also pack your tent on top of this bag. तो आप ये सेटअप भी इजीली आप कर सकते हैं. एंड अगेन लाइट एंड इजी टू डू. एंड या आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट बोथ द बाइक सेटअप. आई थिंक या दैट्स ऑल अबाउट बोथ द बाइक्स एंड द टूरिंग सेटअप ऑन द एक्सपल्स एंड द हिमालयन. अभी तक का हमारा टूर ऑल अराउंड नॉर्थ ईस्ट हैज़ गॉन रियली वेल. एंड अगर आपने हमारे अभी तक व्लॉग्स नहीं देखे देन लॉट ऑफ कितना लिंक शेयर करूँ, बट वन ऑफ द माई फेवरेट वीडियोज ओवर हियर. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड सी द वीडियो एंड टेल मी हाउ यू लाइक्ड इट. एंड आपके कुछ और सवाल हैं या फिर इफ़ यू हैव सम डाउट रिगार्डिंग द टूरिंग सेटअप ऑन द हिमालयन एंड द एक्सपल्स, स्पेशली ऑन द एक्सपल्स, यू कैन पिंग मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल. इट्स ओवर हियर. एंड आप बता सकते हैं मुझे. रेस्ट आई थिंक या दैट्स ऑल अबाउट इट. एंड अभी हम थोड़ा सनसेट तो हो चुका है, अभी आप शाम के थोड़े मज़े करेंगे. एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. थैंक यू गाइज. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.